We are revising chapter National Movement. In this chapter, you have read about Arms Act, how Indians were unhappy under British. First of all, they passed an Arms Act, then Vernacular Press Act, and then आपने कल पढ़ा था इल्बिट बिल 1870 से लेके आपने 1947 तक का पीरियड इस चैप्टर में पढ़ना। तो yesterday you have read about moderate formation of Indian National Congress and then about moderates and extremists. So how they were different from each other. Then you have read about Surat split in the Congress between moderates and extremists in 1907. So today we are going to start with coming of Mahatma Gandhi. Coming of Gandhi ji. Gandhi ji came to India in 1915. 46 years के थे जब वो इंडिया में आए। तो गांधी जी came to India in 1915 and आते ही he took the round of all of India because he wanted to know the poor condition of Indians under British. He took the round of all of India on the advice of his political guru Balkrishna Gokhale, and he was very shocked when he saw how Indians were totally exploited by British. Indians were exploited economically, socially, politically under British. He was also shocked when he saw the poor condition of untouchables. तो गांधी जी ने आते पहले पूरी इंडिया का राउंड लिया। अब जब गांधी जी आए थे ना, तो उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया हैड नो एनिमिटी विद एनी कंट्री। दिस वॉर वाज बिटवीन अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। India had no enmity with any country, but India was the colony of British. So British forced Indian to join this army. Indian peasants and workers were forced to join the army. They were sent to fight war abroad. उन्हें बाहर abroad भेज दिया गया to fight this war. And when many people lost their life in this war, many Indians lost their life, and those soldiers who came back, जो वहां से बच गए, they came back to the country and they were on the view. No, they came to know, when they came back, they came to know that how imperialist powers exploited the एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ आ चुकी थी कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स है ना, वो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज उनकी कॉलोनीज थी। तो उन दिनों रशिया में भी रिवोल्ट हुआ। इन 1970 देयर वाज रिवोल्ट इन रशिया, Russian Revolution. In which year there was revolution in Russia? In 1917. There was revolution in Russia. रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ ना, ये रेवोल्यूशन किया था वर्कर्स ने। वर्कर्स raised their voice against the injustice done with them. Socialism was spreading in Russia, so there was revolution in Russia. रशिया में पीजेंट्स वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए थे। तो रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट। तो रशिया से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशंस मिली इंडियंस को। दिस इंस्पायर्ड इंडियन पीपल आल्सो टू फाइट फॉर देयर राइट्स। रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द रेवोल्यूशन। रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री and
in Russia, revolt was done by workers and peasants. So this inspired Indian people also to raise their voice against injustice, because Russia में peasants and workers ने उनके साथ injustice हो रहा था, उन्होंने उसके against आवाज उठाई थी. So this inspired Indian people to raise their voice against injustice. तो कहीं ना कहीं Russian Revolution का भी impact पड़ा. Next, 1919 में. In 1919, British passed Rowlatt Act. अब Rowlatt Act क्या था? It was also known as Black Bills. So by this act, British could arrest any Indian without trial for 2 years. So whole India was against Rowlatt Act. गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी. He declared strike in the whole of India against Rowlatt Act. अब Rowlatt Act के अगेंस्ट स्ट्राइक डिक्लेयर हो गई, तो लोगों ने इस एक्ट को डेविलिश एक्ट भी बोला, एक्ट एज डेविलिश. तो इस एक्ट के अगेंस्ट देयर वाज स्ट्राइक, हड़ताल डिक्लेयर्ड बाय महात्मा गांधी on 6 April 1919. रॉलेट एक्ट को लोगों ने डेविलिश एक्ट भी बोला. रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इन विच ईयर? 1919. रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ. इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. तो गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट 6 April 1919 को होल इंडिया में रॉलेट सत्याग्रह डिक्लेयर कर दिया. रॉलेट सत्याग्रह. अब इंडियंस जिस दिन हड़ताल थी ना, इंडियंस जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे. पीसफुल प्रोसेशंस वर गोइंग ऑन. लिकर शॉप्स वर picked up. People started burning British goods and Indian goods were promoted. People started using Indian goods. तो ये सब कुछ ड्यूरिंग द डे ऑफ हड़ताल हो रहा था. अब वायलेंस हुई तो ब्रिटिश ने क्या किया? जनरल डायर केम टू इंडिया एंड ही पास्ड मार्शल लॉ. उसने आते ही मार्शल लॉ पास कर दिया. अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू असेंबल. बट कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी थी एट जलियांवाला बाग on 13 April 1919. अब यहाँ पे आ जाना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट. जलियांवाला बाग इंसिडेंट. अब ये कब था? 13 April 1919. तो कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी जलियांवाला बाग में अमृतसर में on 13 April 1919. अब according to martial law, people were not allowed to assemble, but यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए. People assembled in Jallianwala Bagh. This was not tolerated by General Dyer. He entered the Jallianwala Bagh and blocked the narrow gate. He ordered his troops to fire on unarmed Indians. Many people lost their life in this incident and many got injured. So due to this incident, whole India was shocked and there were strikes in whole of India against Jallianwala Bagh incident. Many Indians they surrendered their titles given by the British. British ने जो इन्हें टाइटल्स दिए हुए थे ना, लोगों ने सरेंडर करने शुरू कर दिए. जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, ही सरेंडर्ड द टाइटल ऑफ नाइटहुड. रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था, जो कि इन्होंने इस इंसिडेंट के बाद वापस कर दिया. So people were shocked due to this incident. अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद
Gandhiji decided to call back his सत्याग्रह movement. अब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे, बट दिस टाइम ही वांटेड टू जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. तो उधर से मुस्लिम्स जो थे दे आल्सो टर्न्ड अगेंस्ट ब्रिटिश because the powers of Khalifa, spiritual head of Muslims, were taken by British, and they also wanted to launch Khilafat movement against British. तो अब दोनों ने अली ब्रदर्स, Muhammad Ali and Shaukat Ali and Mahatma Gandhi joined their hands, and कौन सी मूवमेंट लॉन्च हो गई? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. Who launched non-cooperation Khilafat movement? Mahatma Gandhi and Ali brothers. January 1921 को ये मूवमेंट लॉन्च हुई. Who launched? Mahatma Gandhi and Ali brothers. Ali brothers कौन कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली. उन्होंने मिलकर कौन सी मूवमेंट लॉन्च की? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. अब इधर इस मूवमेंट में people left the British institutions. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajagopalachari, Asaf Ali gave up their practices. सबने अपनी practices छोड़ दी. Students, teachers, doctors, they left their British institutions. लोगों ने boycott किया British institutions का. तो इस वजह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में लोगों ने ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट किया. इस मूवमेंट का मीनिंग था नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश. ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं करना. बेस ऑफ दिस मूवमेंट वाज नॉन वायलेंस बिकॉज गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. तो बाय दिस मूवमेंट people left their institute. During this moment, people left their institutions, British institutions. They surrendered the titles given by the British, and they boycotted the British goods. Many teachers, students, doctors left the British institutions. फिर हम कहेंगे many lawyers such as C.R. Das. फिर हम कहेंगे पंडित नेहरू, आसफ अली. इन सब ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी. बट वापस लोगों को दोबारा इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने पड़े क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. तो जिन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा दे हैड टू ज्वाइन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेन. लोगों ने खाती यूज करनी शुरू की थी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, बट खाती वाज एक्सपेंसिव, सो पीपल हैड टू बाय खाती अगेन. People had to leave खाती and started to buy mill-made clothes again. लोगों ने खाती छोड़ के फिर mill-made clothes ही खरीदे because खाती was expensive. तो लोगों को mill-made clothes ही दोबारा लेने पड़े. तो in this way, non-cooperation खिलाफत मूवमेंट जो थी ना, लोगों को इस मूवमेंट में बहुत सी. एक मिनट वेट स्टूडेंट्स, ये स्लाइड की प्रॉब्लम आ रही है. वेट, आई एम गोइंग टू रिपीट नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट टॉपिक अगेन बिकॉज ड्यू टू आई थिंक लाइट की प्रॉब्लम हुई थी तो इसलिए प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी नेटवर्क में. तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन बिकॉज स्टूडेंट्स यू आर सेइंग योर वॉइस वाज नॉट क्लियर. So this movement was launched by Mahatma Gandhi and Ali brothers. From the Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali. तो इस मूवमेंट में उन्होंने कहा था नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश. तो इस मूवमेंट में बहुत से इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बाइकॉट किया गया. पीपल सरेंडर्ड द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश. स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स लेफ्ट देयर इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. और बहुत से लॉयर्स थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, सच एज मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद आप कह सकते हो, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ी. सी राजागोपालाचारी, आसफ अली, मोतीलाल नेहरू एंड C.R. Das, C. Rajagopalachari. They left their practices
And Rabindranath Tagore surrendered the title of knighthood. People burnt the British goods, started using khadi. बट ये सब कुछ स्लो डाउन हो गया था बिकॉज वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. लोगों को दोबारा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना पड़ा था और दोबारा लोगों को खादी को छोड़ के मिल मेड क्लोथ खरीदना पड़ा. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट हुई, टाउन्स में हुई, लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के पार्ट लिया, कंट्री साइड एरियाज में सेपरेट हुई, और फिर प्लांटेशन एरियाज में तो यहाँ तक कहा गया कि गांधी राज इज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन हिज विलेज. हर एक को लैंड मिलने वाली है विलेज में, गांधी राज आ रहा है. नो पीपल वांटेड टू गो बैक देयर होम फ्रॉम द प्लांटेशन एरियाज, बट whenever they tried, they were killed by the British. They were not allowed in the plantation areas. People were enclosed. So this movement spread in different parts. People of different social groups joined this movement. लोगों ने इस movement को join किया था. ट्राइबल एरियाज के लोगों ने ज्वाइन किया. दे वांटेड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस. कंट्री साइड के लोगों ने ज्वाइन किया. दे वांटेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम तालुकदार, जो कि टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्ट करते होते थे. टाउन्स के लोगों ने ज्वाइन किया. उन्होंने अपने तो इंस्टीट्यूशंस ही छोड़ दिए थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस छोड़ के, तो वो घरों में बैठ गए थे. तो इस वजह से तो ये मूवमेंट भी गांधी जी ने कॉल बैक कर ली. ये मूवमेंट 1921 से लेके 1922 तक चली. फेब 1922 5 फेब तक चली. अब ये मूवमेंट गांधी जी ने वापस ली बिकॉज देयर वाज वायलेंस इन चोरी चोरा. चोरी चोरा विलेज इन उत्तर प्रदेश, वहां पे वायलेंस हुई थी. हियर पीपल टर्न्ड वायलेंट एंड दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशन. चोरी चोरा एक विलेज है उत्तर प्रदेश में, अभी भी है. वहां पे लोग जो थे वो वायलेंट हो गए एंड दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशन. चोरी चोरा जगह का नाम है. Here people turned violent and they attacked the police station, and 22 policemen lost their life in this incident. लोगों ने जो पुलिस स्टेशन को आग लगाई थी उसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे. तो though they were British, but it was not liked by Mahatma Gandhi. He was against violence, so he decided to call back non-cooperation खिलाफत मूवमेंट. अब उन्होंने इस मूवमेंट को वापस लिया. बट एक मिस्टेक यहाँ पे ये की कि he didn't consult with Ali brothers. Ali brothers were the active participants of this movement, but Gandhi ji called back this movement. उन्होंने 1922 को ये मूवमेंट उन्होंने फेब मंथ में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट क्विट कर ली, विदड्रॉ कर ली. गांधी जी ने ये पहले सत्याग्रह मूवमेंट, जैसे जलियांवाला बाग से पहले ही लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट, बट जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर दैट ही कॉल्ड बैक सत्याग्रह मूवमेंट एंड लॉन्च्ड नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय ज्वाइनिंग हैंड्स विद मुस्लिम्स. बट जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ तो ही कॉल्ड बैक नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. तो उन्होंने इस मूवमेंट को भी वापस ले लिया. नाउ लिसन अगेन. आज आपने सिर्फ इतना किया, अभी तक जितना लेसन किया है, लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रेड अबाउट आपने कैसे कैसे इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे. 1870s के पीरियड में आपने यही पढ़ा. सबसे पहले आपने पढ़ा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878. फिर आपने 1883 का एल्विट बिल पढ़ा जिसको कि विदड्रॉ किया जब ब्रिटिश ने. वैसे तो वो बिल इक्वालिटी लाया था, बट जब ब्रिटिश ने उसे विदड्रॉ किया तो कहीं ना कहीं उनका रेशियल एटीट्यूड शो हो गया. उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो वो इंडियंस के साथ करते थे वो शो हुआ उससे. देन आपने पढ़ा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में. किसने बनाई? A.O. ह्यूम ने. फिर आपने वो भी पढ़ा कि कैसे कांग्रेस फर्स्ट 20 years इट वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स. फिर आपने मॉडरेट लीडर्स पढ़े थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आपने W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी, ये सारे मॉडरेट लीडर्स थे. फिर आपने पढ़ा कि कैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में. बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 parts. तो दिस वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन
and known as the devilish policy of Curzon. तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पे ब्रिटिश जो थे लोगों को बांटना चाहते थे. बट yesterday I've told you the real motive of British behind this partition. रियल मोटिव यही था कि बांटना चाहते थे, बट कहा क्या कि हमें इतना बड़ा प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में प्रॉब्लम हो रही है. तो यू हैव रेड अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, कैसे स्वदेशी मूवमेंट फिर लॉन्च होगी, तो कैसे ब्रिटिश को इस पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ा 1911 में. फिर आपने पढ़ा कि मॉडरेट्स के बाद एक्सट्रीमिस्ट आए. एक्सट्रीमिस्ट जो थे दोनों ही एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट को ही हम रेडिकल्स कहते हैं. दोनों में बहुत फर्क था, दोनों की पॉलिसीज डिफरेंट थी. फिर आपने पढ़ा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार अब स्टार्ट होगी. अब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में आज आपने पढ़ा कि स्टार्ट हुई. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया की तो कोई एनमिटी थी नहीं किसी के साथ, बट इंडिया को ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो इंडियंस हैड टू जॉइन दिस वार ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. उधर से ये वार स्टार्ट हुई तो गांधी जी इंडिया आए 1915 में. आते ही होल इंडिया का राउंड एरिया, एंड he was shocked when he saw poor condition of Indians under British and how Indians were untouchables were treated badly by high caste Hindus. He was shocked. तो इसके बाद आपने पढ़े 1919 के रॉलेट एक्ट. इसमें से उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट आपको नहीं बताई हुई. बीच में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की थी, इसके राउंड्स लिए थे, सत्याग्रह राउंड्स कहते हैं उनको. दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक. सीधा ही उन्होंने रॉलेट एक्ट पे लेके गए आपको. तो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919. इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस को ब्रिटिश जिस पे भी उनको शक होता ब्रिटिश को, उस इंडियन को अरेस्ट करके 2 इयर्स के लिए जेल में डाल देते. तो इस एक्ट के अगेंस्ट होल इंडिया गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट हड़ताल डिक्लेयर कर दी 6 अप्रैल 1919, जिसे हम कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह. तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक हुई, प्रोटेस्ट हुए. हड़ताल के टाइम जो जो हुआ है, वॉयलेंस हुई. ब्रिटिश को जनरल डायर को बुलाना पड़ा, उसने मार्शल लॉ लगाया. तो बट उधर से कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी कहाँ पे, जलियांवाला बाग में. तो 13 अप्रैल को 1919 को ये मीटिंग थी. लोग यहाँ पे असेंबल हुए. जनरल डायर ने यहाँ पे जाके फायरिंग की. मैनी इंडियंस लॉस्ट देयर लाइफ. तो ये इंसिडेंट से गांधी जी बहुत दुखी हुए एंड ही डिसाइडेड टू कॉल बैक हिज सत्याग्रह मूवमेंट एंड डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बट दिस टाइम ही वांटेड टू जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स भी चाहते थे गांधी जी के साथ हैंड जॉइन करना, तो मिलकर उन्होंने कौन सी मूवमेंट लॉन्च की, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. मुस्लिम्स में से अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. जनवरी 1921 में ये मूवमेंट लॉन्च हो गई. अब इस मूवमेंट के अंडर क्या क्या उन्होंने लोगों को बोला, इसलिए मूवमेंट कैसे कैसे स्प्रेड हुई, कैसे कैसे टाउन्स के लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस का बाइकआउट किया, लेफ्ट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड स्टार्टेड यूजिंग खादी. ब्रिटिश गुड्स को जलाया. बट आफ्टर फ्यू मंथ्स लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस दोबारा ज्वाइन करने पड़े, खादी दोबारा खरीदनी पड़ी, बिकॉज मिल मेड क्लोथ जो था दैट वाज चीप, खादी वाज वेरी एक्सपेंसिव. तो लोग वापस आ गए. फिर हमने पढ़ा कि कैसे कैसे मूवमेंट टाउन्स में स्प्रेड होने के बाद कंट्री साइड में स्प्रेड हुई, ट्राइबल एरियाज में स्प्रेड हुई, प्लांटेशंस में. तो ये कहा गया कि गांधी राज इज कमिंग, हर एक कोस्ट के विलेज में लैंड मिलेगी. तो इस वजह से मूवमेंट स्प्रेड होती गई. देन ये मूवमेंट भी फेल हो गई. On 5th Feb 1922 गांधी जी कॉल्ड बैक दिस मूवमेंट बिकॉज एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ था इन चोरी चोरा. चोरी चोरा एक विलेज है उत्तर प्रदेश में. वहाँ पे लोग जो थे they turned violent and they attacked the police station. So 22 policemen lost their life in this incident. तो गांधी जी को दुख हुआ, he decided to call back non-cooperation movement. उन्होंने ये मूवमेंट मीन्स 21 में स्टार्ट हुई, 22 में ये मूवमेंट वापस ले ली. आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ईयर्स में भी ये भी पढ़ा है कि कैसे रशिया में 1917 में रिवोल्ट हुआ था. There was revolution in Russia and this revolution was done by peasants and workers. Mainly workers ने किया था because their wages were less and working hours were more. तो workers वहाँ पे protest करते थे. तो रशिया आफ्टर द एवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन के बाद रशिया में लेनिन पावर में आया था.
लेनिन। तो रशिया जो है वो बन गई सोशलिस्ट कंट्री, फर्स्ट कंट्री थी जो सोशलिस्ट बनी थी। रशिया में कैसे पीजेंट्स को राइट्स मिल गए थे, कैसे लैंड प्रॉपर्टी बन गई थी स्टेट गवर्नमेंट की, तो सब कुछ रशिया में काफ़ी चेंजेस आए थे। रशिया कहाँ एक बैकवर्ड कंट्री थी, अब उसमें प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई आफ्टर द रेवोल्यूशन अंडर लेनिन। तो कहीं ना कहीं ये वाले सारी न्यूज़ इंडिया में भी स्प्रेड हुई एंड इंडियंस गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस रेवोल्यूशन। उनको अब ये बात समझ आ चुकी थी कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स है ना, इंपीरियलिस्ट पावर जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन एक इंपीरियलिस्ट पावर थी, वो अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही है। इंडिया एशियन कंट्री, तो एशियन एंड आपको पता है अफ्रीका आल्सो रिमेन द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन पावर्स, अफ्रीका भी इनकी कॉलोनी रह चुका है। उनको कहीं ना कहीं लगा था कि ये जो अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज है ना, दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय यूरोपियंस, कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्ट पावर्स इन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है।